Hi guys, this is Shoaib Afta. Welcome back to another video on my channel. Today I'm going to talk about how you can improve your physics in the little time which is left before NEET, and also for those people who are going to appear for NEET 2023 and the subsequent years. So guys, first things first, if you're watching this video, then you might already be using some sort of strategy or some sort of studying technique. So that is very important to consider too. जैसे कि कुछ लोग होते हैं, what they do is they focus more on theory, more on concepts, people like me. So what I used to do is I used to focus more on the theory and the concept, and I used to focus less on questions. And there are a lot of people who are different too. They solve a lot of questions and they do the theory later. There's an approach where they first solve the questions and then they go towards the theory. So that works fine too, but these are two essentially different approaches and you should not intermix them together, or you should not try them together. इसमें एक चीज़ तो पक्का श्योर है कि आपको जो आपकी जो स्टडिंग टेक्निक है, आपकी जो स्टडिंग स्टाइल है, उसको एब्रप्टली चेंज नहीं करनी है. लॉट ऑफ पीपल आफ्टर वॉचिंग अ वीडियो और टू, अगर उनको लेट्स से मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, देन दे सडनली स्विच देयर स्टाइल and then they again get confused as to what to do. So after you have decided what's your approach towards studying physics, so let's say it's more of question centric कि आप ज़्यादा question practice करने में focus करते हो, and mostly during revision आप क्या करते हो, पहले question solve करते हो, and then what you do is जो आपको याद नहीं रहता है या फिर जो part आपको लगता है कि you should revise, then you go towards the notes and you revise the theory or the concepts. So first thing is, if you are a 22 or a 23 student, NEET 22 अगर आप अपियर कर रहे हो, then you might already be aware of कि आपके जो है फिजिक्स में कितने पार्ट जो है स्ट्रॉन्ग है, कितना पार्ट जो है वीक है, एंड हाउ मच यूर स्कोरिंग. आपको एक रफ सा एक आइडिया होगा, बिकॉज यू नो यू टेंड टू अपियर लॉट ऑफ मॉक टेस्ट, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो लेवल है, जो स्कोर का लेवल, वो कहाँ पे चल रहा है. लेट्स से आउट ऑफ 180 इट्स अराउंड 100 है, या फिर अराउंड 150 है, या फिर इवन लेस है, लेट्स से 50 to 100 है. So that depends. After you figured out in what you are weak at, in what part you are strong at, और कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे अगर आप 23 के स्टूडेंट हो और आपको पता है कि आपकी जो 11th है वो बहुत ही वीक है, या फिर लेट से आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपने 11th में फ़िज़िक्स ढंग से सॉल्व नहीं किया है, या फिर आपको पता है कि जैसे ये जो चैप्टर है ये मेरा वीक है, ये जो पूरा यूनिट है यहाँ पे लेट से आप या तो बीमार पड़ गए, या फिर लेट से द टीचर दैट वाज टीचिंग यू वाज नॉट गुड एनफ एंड यू कुड नॉट ग्रास्प द कॉन्सेप्ट. सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स कैन हैपन. So first of all, you need to get an idea of how much you are scoring, where you are lacking, which concepts, or let's say which theory portions you are weak at, which chapters you are strong at, and you know कैसे तरह के आपके मेनली मिस्टेक्स होते हैं. इट कैन बी वेरियस थिंग्स, लाइक आपको सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं. देन यू कैन फेस द प्रॉब्लम ऑफ टाइम शॉर्टेज. कुछ लोगों को ये भी दिक्कत आती है कि फिजिक्स उनका सॉल्व हो नहीं पाता है. लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल सॉल्व फिजिक्स इन द एंड. तो इन द एंड क्या होता है, अप्रॉक्स लेट से कभी पेपर लेंदी आ गया तो दे ओनली हैव अराउंड 1 hour सेव्ड अप. सो इन 1 hour दे हैव टू अटेम्प्ट फिजिक्स, एंड a lot of people end up only solving, let's say, half of the paper, or they cannot solve most of the questions even though they know the answers to all of them. So they cannot solve the problems fast enough. So that can be a problem too. या तो आपको स्पीड में दिक्कत आ सकती है, सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, या फिर आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. Once you figured out all of these, then it's time to consider how much time you have left, and is it worth it to devote a lot of time towards it so that you can improve it. मतलब कुछ लोगों को ये लगता है कि जैसे उनका फिजिक्स बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेट्स से दे आर स्कोरिंग ओनली लेट्स से 50 आउट ऑफ 180. सो क्या वो इतना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, दे आर कंसेप्चुअली वेरी वीक, तो क्या वो इतना टाइम दे सकते हैं कि इसके चक्कर में आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनमें जो है आपकी स्थिति और ख़राब ना हो जाए. After you have done considering all of this, you have to make two important plans. First is you have to make a very good revision plan, and then you have to also make an improvement plan. पहली चीज़, आपको रिवाइज तो करनी है जो आपको ऑलरेडी आती है. लेट्स से कि आपको 11th में ज़्यादा कुछ नहीं आता, बट मैकेनिक्स पार्ट आपका जो है अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, बाकी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं आती, तो एटलीस्ट आपको मैकेनिक्स तो रिवाइज करनी है. मैकेनिक्स में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको तो बनाए रखने ही है ना. तो इन द सेम वे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक वन रिविजन प्लान एंड एन इम्प्रूवमेंट प्लान, कि हाँ इतने टाइम तो मैं रिविजन को दूंगा और इतने टाइम जो है मैं इम्प्रूवमेंट को दूंगा. So let's talk about how to make these plans, how to make the revision plan, how to make the improvement plan. So regarding the revision plan, आप क्या कर सकते हो, like what worked best for me was I used to do
फार्मूला शीट्स, जो माइंड मैप्स वगैरह जो होते हैं, जो आप लोग माइंड मैप बोलते हो जिसको, तो मतलब मैंने क्या किया था, अपने जो चैप्टर के एंड में, जो मेरे चैप्टर के क्लास नोट्स होते थे उसके एंड में सारे फार्मूले एंड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिख रखे थे, जिसको आप हैंडबुक भी बोलते हो, बिकॉज हैंडबुक में भी सेम चीज़ होती है। तो हैंडबुक एंड ऑल जो होता है, आप उससे स्टार्ट करो, फोकस ऑन दैट, एंड देन यू मूव ऑन टू क्वेश्चंस में आप क्या क्या कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने ही चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व ऑल ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लेट से आप कोई भी मॉड्यूल सॉल्व करते हो, आप कोई भी बुक सॉल्व करते हो, लेट से आप मॉड्यूल कर रहे हो किसी कोचिंग का, या फिर आप DC पांडे, BM शर्मा, या फिर कोई भी संगेज की कोई भी अगर आप एक बुक सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें से आपने जो पहली बार जरूर कुछ ना कुछ सॉल्व किया होगा, एंड लेट से आपने वो सॉल्व करने के बाद जो भी आपके डाउट्स आए थे, विच एवर क्वेश्चंस दैट यू मार्क्ड इंपॉर्टेंट और विच एवर क्वेश्चंस यू कंसिडर्ड एज डिफिकल्ट, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, उनको आपने स्टार्टिंग में मार्क किया होगा, या अगर लेट से नहीं भी मार्क किया है तो एटलीस्ट अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, हर एक्सरसाइज में से एक एक अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन उठा के एक एक सॉल्व कर लो। सो इट्स मोर अबाउट इम्प्रूविंग योर वीकनेसेस। तो अगर आपने ये जो है प्लान जो है सेट कर लिया है, देन यू हैव टू वर्क ऑन इट। आपको कभी भी ये रूटीन डिस्टर्ब करने से नहीं होगा, आपको हमेशा इस तरीके से ही काम करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट हेल्प अ लॉट। मॉक टेस्ट में क्या होता है, अगर आप पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे ऑलमोस्ट हर टॉपिक जो है कवर हो जाता है। लेट्स से यू एनरोल इनटू एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज, या फिर आप लेट से कहीं ऑनलाइन सोर्स से आप डाउनलोड भी कर रहे हो पेपर्स एंड ऑल, वहाँ पे भी आपको जो है पार्ट सिलेबस वाइज टेस्ट मिलते हैं, वहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल सेट कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर काइंड्स ऑफ मिस्टेक विच इज़ द सिली मिस्टेक, एंड वेयर यू डू नॉट गेट इनफ टाइम, जहाँ पे आपको टाइम की कमी हो जाती है, जहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिली मिस्टेक्स और टाइम के लिए आपको क्या करना है, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। तो आपने जैसा कि आपने डिसाइड किया था कि 2 घंटे में से आप 1 घंटे तो रिवाइज करोगे और 1 घंटे आप क्या करोगे, अपनी इंप्रूवमेंट में फोकस करोगे। तो इंप्रूवमेंट प्लान में आप क्या कर सकते हो, टाइम बाउंड टेस्ट्स को इंक्लूड कर सकते हो कि हाँ इतने टाइम में मैं इतना करूँगा, एंड ऑलवेज ट्राई टू स्ट्रेच योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में जैसे अगर नीट में 1 मिनट आपको मिलता है पर 1 क्वेश्चन, बट फिजिक्स के लिए वो आप थोड़ा ज़्यादा मान लेते हो, क्योंकि बायो यू कैन सॉल्व विद इन लेट से 45 मिनट्स, तो 30 सेकंड में एक क्वेश्चन हो रहा है बायो का। तो फिजिक्स में क्या करते हो, आप लेट से 1 घंटा मानते हो कि आपको जो 45 क्वेश्चन 1 घंटे में सॉल्व करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या सोचते हो कि मेरे पास अराउंड 1 मिनट 15 सेकंड्स या 1 मिनट 30 सेकंड्स के आसपास का टाइम है पर क्वेश्चन, बट ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व फिजिक्स क्वेश्चन बाय लेट से 45 सेकंड्स और 50 सेकंड्स। तो आप उन चीज़ों को टाइम करने की कोशिश करो, टाइमर्स वगैरह सेट करो, आप देखोगे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस लोग जो है कम करते हैं, तो इस वजह से उनका जो है टाइम लिमिट वाला जो दिक्कत आती है कि टाइम उनको मिल नहीं पाता है। या फिर सिली मिस्टेक्स का भी एक और रीज़न ये होता है कि लोग क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, उन चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये चीज़ें आप मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा के भी कर सकते हो। सो ऑल इन ऑल आपको क्या करना है, 2 पार्ट्स में सोचना है। एक तो आपको रिवीजन कभी ख़राब नहीं करना है, क्योंकि मैंने ऐसा भी सुना है कि लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव करने में इतना लग जाते हैं कि वो क्या करते हैं, अपने रिवीजन को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और फिर इन दी एंड क्या होता है, आपका कभी स्कोर इम्प्रूव हो ही नहीं पाता है। फिर उनको लगता है कि मेरा स्कोर क्यों इम्प्रूव नहीं हो रहा, मैंने तो इतना काम किया, फिर वो छोड़ ही देते हैं इम्प्रूव करना। तो आपको दोनों चीज़ें साथ में लेके चलनी है, जो आपके ऑलरेडी मार्क्स आ रहे हैं उसको भी बनाए रखना है, और आपको जो है इम्प्रूवमेंट पे भी फोकस करना है। सो थैंक यू गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, होपफुली आपको समझ आया होगा कि आप कैसे अपने फिजिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई फिक्स सी स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी फिक्स्ड स्ट्रैटेजी, या फिर एक फिक्स टाइम टेबल नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको कि आप इस टाइम ये करो, अगले दिन ये करो, तो आपका जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है, किसी का कोई और रीज़न हो सकता है। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका जो सॉल्यूशन होता है वो ब्रॉडली सेम ही होता है। सो होपफुली आपको इस वीडियो के बाद ये चीज़ें समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो जैसा कि मैं एनालिटिक्स चेक कर रहा था, क्लोज टू 50% ऑफ द व्यूअर्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, तो प्लीज़ गाइस कंसिडर दिस, सब्सक्राइब कर देना। एंड आई विल ऑलवेज ट्राई टू पुट अप मोर कंटेंट जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो। ओनली नीट नहीं, मैं स्टडी व्लॉग्स भी डालता हूँ, मैं आई पोस्ट अ लॉट ऑफ कंटेंट, और आगे भी मैं बहुत चीज़ें सोच रहा हूँ, जैसे लेट से आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अ पॉडकास्ट और टॉक शो टाइप में कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे जो है आई टॉक विद अ लॉट ऑफ माई पीपल एट एम्स। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ पे एम्स में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। हाउ वी कैन क्रिएट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस कर सकते हैं, और ऐसा कुछ मैं प्लान कर रहा हूँ। सो गाइज डेफिनेटली स्टिक विथ मी, I'll post more of such content. Thank you for watching. Bye.